So here now we are starting the second term chapter, demand. Okay. So this microeconomics will lead you to the way how you deal with the today's problems. आप किस तरीके से अपनी problems को face करते हैं, आप किस तरीके से उनको solve करते हैं, ये सारी चीजें आप microeconomics से पढ़ते हैं. Okay. Because microeconomics deals with the small individual issues, individual persons, whether it is a consumer, whether he is a producer, with all the individual things microeconomics deal. Okay, so beta this just come to the index. In the all of you come to the index contents. Here this is given as this introduction. It is given chapter introduction. Now for your second term exam, this introduction will be of 4 marks. Unit number 2, consumers equilibrium and demand. This chapter number 2, 3 and 4 will include your 13 marks. Please note it down. Chapter number 1, 4 mark. Unit number 2, chapter number 2, 3 and 4 will be of 13 marks. तीनों chapter मिला करके 13 marks के. Then unit number 3, ये पूरा unit number 3 भी है 13 marks का. Please note it down. This chapter number 5, 6, 7, 8, 9 पूरा ऐसे यहाँ पे bracket लगा लीजिए. Please tell right? one more time. 13 marks. Just wait, I'm telling. And this unit number 4, last is of 10 marks. Please note it down. I'm repeating again. Unit number 1 is of 4 marks. Unit number 2 is of 13 marks. Unit number 3 is of 13 marks. And unit number 4 is of 10 marks. All of you, please note it down. So, starting with the chapter demand. Now, what is demand? Just see the definition over here. Generally, desire, want and demand are interchangeably used in day-to-day life. Mostly क्या होता है जब आप economics को पूरा detail study नहीं करते हैं, what happened? That desire, want and demand सब एक ही मानते हैं. Desire यानी कि मेरी इच्छा है, want मतलब कि मेरी जरूरत है और demand मतलब कि मैंने लेने जा रही हूँ चीज को या मैं ले रही हूँ, यूज कर रही हूँ चीज को, तो वो demand कहलाती है. लेकिन बेटा in the terms of economics, okay, the demand is a deep concept and a separate concept. है सब कुछ यही, लेकिन उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो ओरिजिनली वो क्या चीज होती है, दैट यू हैव टू लिसन. नाउ जस्ट लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिमांड? बेटा डिमांड खाली ये नहीं है मैंने कोई भी चीज मुझे चाहिए वो डिमांड हो जाती है. दैट इज नॉट अ डिमांड. डिमांड मींस सबसे पहले मेरे जो है इच्छा होनी चाहिए उस चीज को परचेज करने की, डिजायर होनी चाहिए. डिजायर यानी कि दैट आई वांट दैट कमोडिटी. कि दूसरी चीज है कि मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए कि मैं उसे खरीद सकती हूँ. ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकती हूँ. और तीसरी चीज, मैं उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो ही वो डिमांड कहलाती है. Okay? So demand constitute 3 things. That first of all, I should have the desire. मेरी desire होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी requirement है, ये मुझे चाहिए चीज ना. दूसरी चीज, मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए. अगर पैसे नहीं, खाली मैं सोच लूं भैया मैं तो नई कार ले लूं और या होंडा सिटी ले लूं, लेकिन पैसे नहीं है, डिजायर तो है, तो वो डिमांड थोड़ा बन जाएगी. तो पहले डिजायर होनी चाहिए, फिर मेरे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि मेरे पास पैसा होना चाहिए या मैं उसको लोन पे आई कैन अफोर्ड इट, तो वो डिमांड बनेगी ना. सॉरी, इतना पैसा होना चाहिए कि मैं खरीद सकती हूँ. और तीसरी बात, मैं विलिंग हूँ उस पैसे को स्पेंड करने के लिए. मान लीजिए नहीं मैं विलिंग हूँ, मेरा मन नहीं है तो कार खरीदने का, मेरा मन है मैं कोई घर खरीद लूँ, मेरा मन है मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दूँ बिजनेस में या शेयर्स में, तो तब भी वो डिमांड नहीं बनेगी. तो किसी भी चीज की डिमांड तब बनती है जबकि हमारी डिजायर हो उस चीज को परचेज करने की. दूसरी बात, मेरे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हो. और तीसरी चीज, मैं विलिंग हूँ उस पैसे को स्पेंड करने के लिए, तो ही वो डिमांड कहलाती. So now, starting with the determinants of demand. After learning about the meaning of the demand, here now comes the determinants of demand. Now, beta, what is determinants of demand? Determinants of demand means वो factors जो कि demand को affect करते हैं. Please do not write on the screen. Behave yourself in the class. Don't write on the screen. Rub it. So, what are the factors that affect the demand? यानी कि जो हमने डिमांड करी है उनको बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं. जैसे कि मेरी इनकम क्या है, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है. तो बहुत सी चीजें होती हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करती हैं. उनको हम नाम देते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि डिमांड को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीधे नहीं पूछ जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन बना करके आपको पुट अप किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट ऑफ द फैक्टर, फर्स्ट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए बेटा, जो डिमांड होती है ना, वो डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड होती है ना। जितना ज्यादा प्राइस होगा हमेशा डिमांड उतनी कम होती है। अब आपने यूजुअल लाइफ में ले लीजिए, अगर कोई भी चीज के प्राइस ज्यादा होते हैं, मान लीजिए अनार है या कोई खाने की चीज है या कोई जैसे गोल्ड है आजकल बहुत महंगा है, तो क्या होता है उसकी डिमांड कम होती है जिन चीजों के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, और जिन चीजों के प्राइसेस कम होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है। हमेशा प्राइस और डिमांड में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस जो होता है कमोडिटी का डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और हमेशा प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो जो पहली चीज डिमांड को इफेक्ट करती है वो क्या होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। गॉट? नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित गुड्स होते हैं, एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित करते हैं। यहाँ पहले तो हमने बात करी थी इस वाले पार्ट में प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, अब हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की। तो रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इनकी दो कैटेगरी होती है। पहला यहाँ पर है सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है ये इसके प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ही है ये, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के कितने ब्रांड्स यूज करते हैं, आप डिओड्रेंट यूज करते हैं, आप परफ्यूम यूज करते हैं। मोस्ट रिलेवेंट एग्जांपल है इसका टी एंड कॉफी, है ना। या फिर आप मतलब कि लस्सी पसंद करते हैं या जूस पसंद करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, वो कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेती हूँ जो कि हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज टी, और एक हमने एग्जांपल इसका लिया कॉफी। तो जो कॉफी है ना वो टी का सब्स्टिट्यूट है, और जो कॉफी है वो टी का, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम इसमें एक जगह की जगह पर दूसरे को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कमोडिटी का प्राइस है ना वो इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दूसरी चीज डिमांड को इफेक्ट करेगी। जैसे कि अगर कॉफी का जैसे कि अगर कॉफी का प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है ना, अगर कॉफी का प्राइस, एरो नहीं मिल रहा है मुझे मार्क करने के लिए, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस ना, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करता है तो क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी सेम प्राइस पर ही। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग टी परचेज कर रहे हैं वो अब क्या करेंगे, कॉफी को परचेज करेंगे। अब देखो टी का प्राइस तो नहीं बढ़ा, सॉरी, अगर प्राइस कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो लोग कॉफी परचेज कर रहे हैं उनको अब कॉफी महंगी लगेगी, इसीलिए वो कॉफी की जगह पर क्या परचेज करेंगे, टी परचेज करेंगे। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। सेम अगर कॉफी का प्राइस घट जाता है तो टी की डिमांड भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि टी के कंज्यूमर्स भी कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, जरूरी नहीं कि हमें कॉफी पीनी है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए टी के तो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर कॉफी के प्राइसेस में चेंज आता है और कॉफी टी का सब्स्टिट्यूट है तो टी की डिमांड में फर्क आ जाता है। दोबारा समझा रही हूँ मैं, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफी के कंज्यूमर्स टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर कॉफी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि टी के कंज्यूमर्स भी क्या होंगे, वो कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे।
Here now we are starting the complementary goods. Complementary goods are the goods which are used together. जिनको हम एक साथ में यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल. ठीक है, यानी कि जो कि एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ना, तो बाइक की डिमांड भी कम हो जाती है. पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी लेकिन साथ में बाइक की डिमांड भी कम हो जाएगी. और कोई एग्जांपल से पेन एंड इंक है ना, या फिर ब्रेड एंड बटर है, या फिर अभी के लिए जीन्स एंड टी शर्ट है, शूज के साथ में कुछ ऐसी चीजें है ना. तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ यूज होते हैं. यहाँ पर अगर एक गुड की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी डिमांड तो कब, सॉरी, एक गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा, मान लीजिए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो तो क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, साथ ही में बाइक की डिमांड भी कम हो जाएगी. वहीं अगर पेट्रोल का प्राइसेस गिरते हैं तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी, साथ में बाइक की डिमांड भी बढ़ जाएगी. सो दीज आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.